Good morning. Good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. This lecture will for electrical engineering semester 4, subject name numerical methods and probability statistics. Today's topic interpolation polynomial. Till today, I have this in previous classes we have discussed finding the root of equations. For finding the root of equation by numerical methods, some methods are we have taken, such as such as bisection method, regular falsi method, and bisection method, regular falsi method, second method, and uh, Newton-Raphson method. Sorry, Newton-Raphson method. After this, just a minute. Sorry. After this, we for finding why we are discussing a numerical method. We have discussed in why we are doing numerical methods. We have discussed in previous class, because when we are not able to find the root of equation or finding the solution of any equations by analytic method, then we discuss numerical method. Then we solve it by numerical method. For finding the root of equation, we have four methods. First, bisection, then bisection, then regular falsi, then second, and next one is Newton-Raphson method. All three methods are in previous three method are 2-point iteration method, and next Newton-Raphson method is our 1-point iteration method. Newton-Raphson is faster than previous three methods. We have discussed that one. Okay. Now today we are discussing that is interpolation. Next topic, that is interpolation polynomial. What is interpolation polynomial and what is the use of this polynomial? The first use in the reconstruction of the function f of x when it is not given explicitly, and only the values of f of x are given at a set of distinct points. If I'm having a function like such that if I'm having a function x की value given है, f of x की value given है x naught, x1, x2, x that is xn, then corresponding f of x, f naught, f1, f2, fn means when we are performing some set of some experiment as in electronics, मीन्स अगर आप कोई करंट लेते हैं तो उस पर एक फंक्शन आउटपुट मिलता है. मीन्स जैसे हमने वोल्टेज एक रखा, उस पर एक डिफरेंट आउटपुट मिला, दैट इज करंट. अंडरस्टूड? अपने हमने वोल्टेज अगर मान लो सपोज दैट आई हैव टेकन द वोल्टेज 1, देन करंट मुझे मिला समथिंग 2.5 समथिंग. इफ आई हैव टेकन द वोल्टेज 2 एंड करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, व्हाट एवर विल बी, बट एक हमें फंक्शंस वैल्यू मिलती जाएंगी. दैट मीन्स हम उसको जब डिफरेंट टाइप्स पे लेंगे, बट मेरे पास 1 पे वैल्यू है, 2 पे है, 3 पे है, बट 1.5 पे नहीं है. इफ सपोज दैट अगर मैं वोल्टेज टू 1.5 फ्लो करूं, देन उस पे करंट क्या होगा? तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट प्रॉब्लम्स आर डील विद इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल. इसकी हेल्प से हम जब हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, उसकी हेल्प से हम एक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं. दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज इंटरपोलेटिंग polynomial. The second use is to perform the required operations like finding roots, derivatives, integrals. Means रूट फाइंड करने के लिए, इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, एंड डिफरेंस डेरिवेटिव्स आल्सो. मींस अगर आपके पास कोई फंक्शन है, दैट मींस x की वैल्यू गिवन है x नॉट, x1, x2, दैट इज xn, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस गिवन है. तो मींस अगर मुझे सपोज दैट कोई फंक्शन है, उसका अगर मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसका कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते. दैट मींस अगर मैंने उसका पॉलिनोमियल निकाल लिया, दैट मींस लैग्रांज किसी भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की हेल्प से, तो हम उसको डिफरेंशिएट करके उसका डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे. अंडरस्टूड है? तो जब डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे तो हमें जो फाइंड करना होता है मिल जाएगा. ओके, थर्ड एग्जांपल,
द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा. ओके, अगर लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटरवल ए बी एंड डिफाइन this that function is defined on n plus 1 interval, as this one is defined on n plus 1 distinct point x naught, x1, x2, xn, such that that lie between a to b. Each point may be equispaced, maybe some points are equispaced, जैसे कि सबका step size is equals to 1 हो, 2 हो, means सबका step means x1 minus x naught is equals to same h. मान लेते हैं step size x2 minus x1 is the same step size, means equispaced हो or non equispaced हो. The problem of polynomial interpolation is to find polynomial Pn of degree less or equal to n. Means जैसे ये how many data n plus 1 points we are using, तो हमें कितने डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा, n लेस आर डिग्री लेस जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो डिग्री लेस आर इक्वल टू n मिलेगा. अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट यूज करता हूँ, दैट मींस x0, x1, x2, तो 3 पॉइंट होते तो कितना डिग्री पॉलिनोमियल मिलता था, 2 डिग्री. दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर 2 पॉइंट्स होते दैट मींस 1 डिग्री पॉलिनोमियल. दैट्स अ मैक्सिमम डिग्री. मींस ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 3 पॉइंट्स यूज करा तो 2 डिग्री ही मिलेगा, मे बी लीनियर मिल सकता है, मगर मैक्सिमम 2 डिग्री मिलेगा. अगर हमने n पॉइंट्स यूज करे तो मैक्सिमम कितने डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा, n प्लस 1 पॉइंट्स यूज करिए तो मैक्सिमम कितने डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा, n डिग्री पॉलिनोमियल. अंडरस्टूड है. अदर यूज ऑफ दिस वन इज इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या होता है, हमारे पास डेटा होता है कि आज की जैसे हमें रेनफॉल का डेटा लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कि जैसे 1999 में कि कितनी रेनफॉल हुई थी, देन 2000 में कितनी रेनफॉल हुई, देन 2001 में कितनी रेनफॉल हुई, 2002 में कितनी रेनफॉल हुई. अगर मेरे पास ये डेटा होता तो मुझे, अगर मेरे पास एक डेटा मिसिंग होता दैट इज 2002, सिमिलरली मेरे पास 2020 तक का डेटा होता, बट मेरे पास एक डेटा मिसिंग होता 2017 का. अंडरस्टूड है. अगर मेरे पास 1999 से 2020 तक का डेटा है बट मेरे पास 17 का डेटा नहीं है कि कितनी रेनफॉल हुई थी, तो हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की हेल्प से वी फाइंड द डेटा ऑफ कि 2017 में कितनी रेनफॉल हुई थी. दैट इज अ यूज ऑफ interpolation polynomial. Sometimes in meteorological department they are using data for weather forecasting, for example, if I'm having a data like that, I'm having a atmospheric data such like that मॉइस्चर, एयर में मॉइस्चर कितना है, एयर में मॉइस्चर कितना है, आज कितना है, कल कितना, मींस जैसे मेरे पास महीने का पूरे मंथ का डेटा है, ठीक है, अंडरस्टूड है, पूरे मंथ का डेटा है, तो नेक्स्ट मंथ जैसे जून, जैसे अप्रैल का डेटा है, अप्रैल में फर्स्ट अप्रैल को कितना मॉइस्चर था, सेकंड अप्रैल को कितना मॉइस्चर था, थर्ड अप्रैल को कितना मॉइस्चर था, तो वी कैन फाइंड दैट कि 5 अप्रैल को कितना मॉइस्चर होगा. दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू. दैट मींस इसका मतलब समझ आएगा कि इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल का यूज हम वहां पे कर सकते हैं जहां पे हमारा डेटा नोन नहीं है, और हमारे पास अगर 5 दिन का डेटा है, अगर फर्स्ट 5 डे का अप्रैल का डेटा है, तो 6 डे का उसके अप्रोक्सीमेट जो डेटा होगा उसमें हम कर सकते हैं. मींस इसका यूज किसमें होगा, वेदर फॉरकास्टिंग. और इसके बाद अगर हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं. अंडरस्टूड है कि जैसे 1 एम्पियर पे, सॉरी 1 वोल्ट पे कितने करंट होगी, 2 वोल्ट पे कितनी करंट होगी, तो जिसकी हेल्प से अगर मुझे 5 वोल्ट तक गिवन है तो मैं उसकी हेल्प से निकाल सकता हूं दैट इज कि 6 वोल्ट में कितना करंट होगा. अंडरस्टूड है. मींस उसकी हेल्प से मुझे एक पॉलिनोमियल मिलेगा और पॉलिनोमियल से हम निकाल सकते हैं. अंडरस्टूड. और सेकंड थिंग, एनी इक्वेशन मींस either transcendental or exponential equation can also be changed into polynomial form. Okay, means x के फॉर्म में, जैसे e के पावर x plus e के पावर 2x, something like that. तो एक इक्वेशन है, अगर वो डिस्क्रीट पॉइंट पे गिवन है, 1 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू, 3 पे वैल्यू, तो मैं उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज कर सकता हूं. दिस इज द यूज ऑफ इंटरपोलेशन polynomial. Then first method of interpolation polynomial, that is Lagrange interpolation polynomial, consider the following values. If I'm having this is x and corresponding f of x,
then x naught is a discrete point, first point x naught and corresponding function f naught, x1 and corresponding function f1, x2 and corresponding f2, such like that. If I'm extending, that is xn and corresponding function fn, where fi equals to f of xi, means x की जगह पे आप क्या पुट करोगे xi, and fi equals to f of xi, f of xi, we can fit a polynomial of degree less or equal to n, means there are n plus 1 points, तो हमें पॉलिनोमियल कितने डिग्री का मिलेगा, मैक्सिमम दैट विल बी n plus n डिग्री का, अंडरस्टूड है। तो वी पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय pn of x, दिस इज अ पॉलिनोमियल, p for polynomial, n for degree, and x for that is a power of x, means L0 of x, or sometimes they called L0 of x, L1 of x f1, sorry L0 of x into f0 होगा यहाँ पे, understood है, L1 of x f1, L2 of x f2, that is Ln of x fn होगा, यहाँ पे L0 of x into f0 होगा, understood, please rectify that one. Then Li of xj is equals to 0 if I does not equals to j, means, and if I equals to j equals to 1, means अगर मैंने x j की वैल्यू 1 ले ली और i की वैल्यू भी 1 ले ली, तो L1 of x1 की वैल्यू कितनी होगी 1, अंडरस्टूड है। अगर L की वैल्यू, सॉरी i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 1 ले ली, दैट मींस L1 x0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मींस व्हेन i does not equal to j, then this value will be 0. For this is most important for MDU examination, because in sometimes in your examination they ask what is, how prove that Li of xj equal to 0 when I does not equal to j and I equal to j then equals to 1. इसको हम करेंगे। Then look at this one. If I'm saying L1 of x, understood है? अगर मैंने कहा L1 of x, तो i की जगह क्या पुट कर दिया 1 और xj की जगह आप x पुट करो, अंडरस्टूड है? तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज x माइनस एक्स नॉट इंटू x माइनस x1, x माइनस xi माइनस 1 और x से xi प्लस 1। आप देखो यहाँ पे xi का टर्म मिसिंग है, मींस xi माइनस 1 और इसके बाद क्या आया xi प्लस 1, ये कहां तक जाएगा x माइनस xn तक, अंडरस्टूड है? किस कौन सा टर्म मिसिंग है i, दैट मींस हम सबट्रैक्ट किससे करेंगे xi माइनस x नॉट, सिंपली जो हमें लेना है l नॉट, जैसे li लेना है, जब li लेंगे तो डिनोमिनेटर से xi मिसिंग होगा, मींस सब कुछ सबट्रैक्ट होगा, x से x नॉट, x से x1 सबट्रैक्ट होगा, x2 सबट्रैक्ट होगा, बट xi सबट्रैक्ट नहीं होगा, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में xi माइनस x नॉट, मींस x की जगह क्या पुट करोगे आप xi, तो xi माइनस x नॉट, xi माइनस x1, xi माइनस x2, दैट इज xi माइनस xn। अगर मैंने L1 of x निकालता, L1 of x, सपोज दैट इफ आई से L1 of x, तो i की जगह क्या पुट किया 1, तो क्या हो जाता xi माइनस x नॉट, बट आपको मैंने क्या कहा नॉमिनेटर में xi नहीं आएगा, दैट मींस i की वैल्यू अगर 1 है तो x1 तो आएगा नहीं, दैट मींस क्या होगा xi माइनस x नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट, अंडरस्टूड है? तो अगर xi माइनस x नॉट सॉरी x माइनस x नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट है, अगर मैंने कहा L1 of x1, तो अगर यहाँ पे x की जगह x1 पुट कर दिया तो x1 माइनस x नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट, तो आंसर क्या जाएगा 1। दिस इज Li of x इज कॉल्ड लैग्रांजियन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। लीनियर कब होगा, जब व्हेन n की वैल्यू 1, x f of x, x नॉट f नॉट एंड x1 f1, x1 f1, okay, how many points are given? If 2 points are given, then मैक्सिमम डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा 1 होगा, बिकॉज 2 पॉइंट्स, अगर n प्लस 1 पॉइंट्स होते तो कितने डिग्री पॉलिनोमियल मिलता n, अगर 2 पॉइंट है तो क्या होगा 1 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। if तो पॉलिनोमियल p1 of x equals to L0 of x into f0 plus L1 of x into f1। अच्छा आप बताओ L नॉट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी x माइनस x1 नॉट है, दैट मींस डिनोमिनेटर में क्या आएगा x नॉट माइनस x1 इनटू f नॉट, जैसे L नॉट देन f नॉट, L1 देन f1, देन L1 की वैल्यू क्या होगा L1 मींस x1 क्या होगा डिनोमिनेटर में, तो x1 माइनस x नॉट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा x माइनस x नॉट f1।
अगर सेकंड डिग्री होगा तो n की वैल्यू क्या होगी 2, तो p2 ऑफ x x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू एफ नॉट अपॉन, अगर f सिंपली अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता सिंपली आप क्या करो 2 डिग्री है दैट मींस कितने पॉइंट होंगे 3 पॉइंट्स, एफ नॉट f1 f2, पहले आप रखो f नॉट देन f1 देन f2, ओके देन आप ऐड करो कि f नॉट है दैट मींस डिनोमिनेटर में क्या आएगा x नॉट, तो x नॉट और रिमेनिंग क्या बचा, अगर x नॉट यूज कर लिया डिनोमिनेटर में तो x1 और x2 रिमेनिंग दैट मींस x नॉट माइनस x1 इंटू x1 नॉट माइनस x2, तो नॉमिनेटर में क्या आएगा, अगर जहां जहां पे भी x नॉट था वहां पे x पुट करो तो x माइनस x1 x माइनस x2, सिमिलरली अगर f1 होगा तो x1 माइनस x नॉट x1 माइनस x2 x माइनस x नॉट x माइनस x2, अंडरस्टूड है, x माइनस x नॉट इंटू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x नॉट into x2 minus x not, sorry, x2 minus x1 that is f2, okay find the Lagrange, एक एग्जांपल करते हैं, find the Lagrange interpolation polynomial for, अगर एक फंक्शन है x गिवन है, डेटा गिवन है x इक्वल टू 2.5 3.5 एट x मींस अगर आपको 2.5 और 3.5 पे वैल्यू गिवन है f ऑफ x की दैट इज 6 और 8 और आपको वैल्यू किस पे निकालनी x इक्वल टू 3, तो दैट इज अ सिंपल केस कि आपको लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फंड मींस दिस इज अ यूज ऑफ इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल मींस वैल्यू किस पे गिवन है 2.5 पे, कितने गिवन है 6 और 3.5 पे 8 गिवन है, आपको वैल्यू किस पे चाहिए 3 पे, दैट मींस यू कैन सॉल्व इट बाय लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल, व्हाट इज डेटा कितने टर्म्स गिवन है 2, दैट मींस कितना लीनियर होगा कि क्वाड्रेटिक लीनियर, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस x1 f नॉट अपॉन x नॉट माइनस x1 प्लस x माइनस x नॉट इनटू अपॉन x1 माइनस x नॉट इनटू f1, देन पुट द वैल्यू ऑफ x1 x नॉट, तो मैंने x माइनस 3.5 अपॉन 3.5 माइनस 3.5 इनटू 6 प्लस x माइनस 2.5 अपॉन 3.5 माइनस 2.5 इनटू 8, when we are solve this one तो 6x हो जाएगा, 2.5 minus 3.5 that is minus 1, अंडरस्टूड है, तो 6x तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस 6x, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 3.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 21, तो माइनस 6x प्लस 21, सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो कितना 3.5 माइनस 2.5 दैट इज 1, ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 2.5 इंटू 8 दैट इज 20, तो अब बताओ माइनस 6x प्लस 8x कितना बचा 2x, this is plus 21 and this one is minus 20, तो 21 minus 20 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या मिलेगा 2x plus 1, अच्छा आप बताओ दिस इज योर पॉलिनोमियल, ओके अगर किस पे वैल्यू चाहिए पॉलिनोमियल की 3 पे, तो हमने x की वैल्यू क्या पुट 3, दैट इज p1 ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी तो 2 into 3 plus 1, तो आंसर विल बी 7, ओके अंडरस्टूड, ये समझ में आया आपको, जस्ट रिकॉल दिस वन, मींस इसका यूज क्या है, जब मेरी मेरी जो वैल्यूज होती हैं अगर आपको वैल्यूज किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 2.5 एंड 3.5 पे गिवन है, 3 पे यूज करनी है तो हम इसका इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल का यूज करते हैं, ओके ओके थैंक यू सो मच।